You might have lost someone so dear. और आप में से हो सकता है किसी ने अपने बहुत प्रिय को खोया है, Or you might have lost the thing which you are working for so hard. या हो सकता है आप में से किसी ने उन चीजों को खोया है जिसके लिए आपने बहुत कड़ी मेहनत करी थी। Or you might be sinking in your body, losing all your health. और हो सकता है अपनी सेहत में आप ऐसे डूबे जा रहे हैं। Lord, help me. पिता सहायता करें। Others cannot rise and handle such challenges. और दूसरे इस तरह से नहीं उठ पाते और इसका सामना नहीं कर पाते। But thank God that He is our rock. लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वह हमारा चट्टान है, He is our strength. वह हमारा बल है And He's making us rise और up. वह हमें उठा रहा है। My friends, the Lord is here to richly reward us. मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर यहाँ पर हमको बहुतायत की आशीष देने के लिए है। And He looks deep into your heart this morning. और वह आपके हृदय के भीतर देख रहा है। He knows where you are. और वह जानता है कि आप कहाँ हैं। He knows what you're going through. और वह जानता है कि आप किन बातों से गुजर रहे हैं। And there is going to be healing in that place. और उस स्थान पर चंगाई होने जा रही है। Psalm 40 verse 2. भजन संहिता 40 और उसका दूसरा He वचन। lifted me out of mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। Out of the slimy pit and the mud and the mire. सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच He से lifted me out. मुझे उभारा है And He put my feet on the rock और मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा and किया gave me a firm place to stand. और मेरे पैरों को दृढ़ किया है। This is what the Lord is going to do this morning. और यही परमेश्वर आपके जीवन में आज करना चाहते हैं। The psalmist rejoices and says this. भजनकार आनंदित होकर इस बात को कहता है, Thank you for lifting me up out of the pit, Lord. धन्यवाद परमेश्वर मुझे उस गड्ढे से उठाने के लिए, Lifting me up out of the mud, Lord. I was so stuck and sinking in it. और उस दलदल की कीच से उबारने के लिए कि मैं कितना उसमें धंसा जा रहा था। Thank you, Lord, for you put me on the rock. धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे चट्टान पर खड़ा किया To have my head held high. ताकि मैं सर ऊंचा कर सकूं। My little daughter always says, मेरी बेटी अक्सर कहती है, she has her own special word. और उसके अपने विशेष शब्द है। I don't know if it has a different meaning in Hindi, but she says, Mama, Dada, chukka, chukka. मुझे नहीं मालूम हिंदी में अगर इसका दूसरा अर्थ है, लेकिन वो ऐसा कहती है, ममा, डैडा, चुका, चुका। That means something is stuck in her or something bad is upon her hand or some mud or something is stuck. और इसका मतलब होता है कि उस पर या उसके हाथों पर कोई धूल या मिट्टी चिपक गई है She wants it cleaned immediately. और वो तुरंत उसे साफ करना चाहती She है। doesn't like anything bad touching her hand or anything dirty touching her. और वो नहीं चाहती बिल्कुल भी कि कोई गंदगी और धूल उसे छुए। Immediately she'll come and say, Chukka, mommy. तुरंत वो आएगी और कहेगी, चुका And we have to मम्मी। clean her up and wash it completely, otherwise she's not satisfied. और उसे तुरंत धोकर साफ करना होता है, नहीं तो वो संतुष्ट नहीं होगी। Come and show the Lord. आइए परमेश्वर को दिखाएं। Lord, look at where I'm stuck. परमेश्वर देखिए कहाँ मैं फंसा हुआ हूँ। Look at what I'm sinking in the mud. मुझे देखिए कि मैं कैसी दलदल में धंसता जा रहा Please हूँ। raise me up and cleanse me. मुझे ऊपर उठाइए और धोकर शुद्ध करिए। Daddy, cleanse me. पिता मुझे शुद्ध करें। I want to be clean. मैं साफ होना चाहता हूँ। I want to be free. मैं आजाद होना I चाहता want to हूँ। come out, Lord. मैं बाहर आना चाहता हूँ Put पिता। me on the rock today. मुझे चट्टान पर खड़ा करें And it will be so. और ये ऐसा होगा। This is the promise of God. ये परमेश्वर की वाचा है And we're going to see how He fulfills it according to Psalm 30. और भजन संहिता 30 के अनुसार देखेंगे वो अपने वायदे को कैसे पूरा करता Shall है। we read verse 2 and 3? क्या हम आयत 2 और 3 को पढ़ें? Lord my God, I call to you for help.
and you healed me. You, Lord, brought me up from the realm of the dead. You spared me from going down to the pit. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। Many of you might have gone through this realm of the dead. और हो सकता है आप में से बहुत ऐसे मृत्यु के आयाम से होकर गुजरे हैं, Into the depths of this realm. और उन आयामों की बहुत ही गहराई में, And it is a terrible place to be. और ये बहुत ही भयानक जगह है, Terrible to feel it. और भयानक है इसे महसूस करना। Feeling like your heart is sinking. वह भाव जब दिल डूबा जाता है, Outside smiling. और बाहर हम मुस्कुराते हैं, Trying to put up a brave face. एक साहसी चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं, Trying to tell people there is no problem. लोगों को यह बताने के लिए कि कोई समस्या नहीं But है, inside sinking. लेकिन अंदर हम डूबे चले जाते Being pulled into the realm of the dead. और उस मृत्यु की गहराई में खींचे चले जाते You हैं। might have lost someone so dear. और आप में से हो सकता है किसी ने अपने बहुत प्रिय को खोया है, Or you might have lost the thing which you are working for so hard. या हो सकता है आप में से किसी ने उन चीजों को खोया है जिसके लिए आपने बहुत कड़ी मेहनत करी थी। Or you might be sinking in your body, losing all your health. और हो सकता है अपनी सेहत में आप ऐसे डूबे जा रहे हैं। Lord, पिता, help me. सहायता करें, Please save me out of the depths. मुझे इस गड्ढे से बचा ले, Please save me out of this pit, Lord. मुझे इस गड्ढे से बचा ले परमेश्वर। Lord, they're even taking away my home. I'm losing my home. पिता, यहाँ तक कि वो मेरे घर को भी ले जा रहे हैं। Where will I go? मैं कहाँ जाऊंगा? How will I face my own family? मैं कैसे अपने परिवार के सामने खड़ा रह पाऊंगा? It is a terrible place to be. और ये बहुत भयानक स्थान है। There is no hope in this place. यहाँ कोई आशा नहीं है, Only suffering. यहाँ सिर्फ प्रताड़ना है, Only despair without hope. बिना आशा के सिर्फ निराशा है, Nothing to cling on to be rescued. और वहां से बच निकलने के लिए किसी भी चीज का सहारा नहीं है। Darkness all around. हर तरफ अंधेरा ही है, This is the realm of the dead. और यही उस गड्ढे का रूप है। My grandfather, Dr. D.G.S. Thinakaran, had a vision one time shown by the Lord. और मेरे दादाजी डॉक्टर DGS दिनकरण को परमेश्वर के द्वारा एक दर्शन मिला, A heavenly experience. एक स्वर्गीय अनुभव। As he was taken into the depths of hell. और जैसे अधोलोक की उस गहराई में उन्हें ले जाया गया, And when he went there, he felt so much darkness surrounding him. और उस स्थान पर जब वे गए उन्होंने बहुत ही अंधेरे को महसूस किया, He felt the power of darkness और उन्होंने अंधकार की सामर्थ्य को महसूस किया, and how it swallows people whole. और कैसे वह सामर्थ्य लोगों को निगल लेती है। He saw a big, huge sea of fire, और उन्होंने एक बड़ी आग की झील देखी, a lake of fire, आग की झील, and there were screams coming out of that lake. और वहां पर चीखना और चिल्लाना निकल कर आ रहा था उस There were झील people से। being burnt in that lake, और उस झील में लोग जल रहे थे, not being able to bear the burning of the fire, आग की जलन को सहन नहीं कर पा रहे थे, feeling the heat that is making them tear apart. और उस शरीर को फाड़ने वाली गर्मी को वो महसूस कर पा रहे हैं। Besides them, there was a mountain, और उसके अलावा वहां पर एक पहाड़ है, and they would climb up and try to run away from this lake and climb up the mountain. और वो कोशिश कर रहे थे कि उस पहाड़ पर चढ़कर इस झील से बच जाए। As they would reach the top, और जैसे वे पहाड़ के ऊपर पहुंचते थे, and their hope would rise, thinking, I'm going to be free. और उनकी आशा जागृत होती थी कि वे बच जाएंगे, Suddenly, a hand of fire would rise up from this lake, और तभी वहां पर एक आग का हाथ उठता था उस it झील would take से, them and toss them back into the fire. और वह हाथ वापस उन्हें झील में फेंक देता था, And they would scream for their life.
और वो अपने जीवन के लिए चिल्ला रहे थे। I thought I was going to be free. मैंने सोचा कि मैं बच जाऊंगा। I can't bear this anymore. मैं इसे सहन नहीं कर सकता। Somebody save me. कोई मुझे बचा ले। Somebody save me. कोई मुझे बचा ले। The depths of hell अधोलोक की गहराई, and the depths of darkness. अंधकार की गहराई। We get stuck in such depths, my friends, and it's terrible to bear. हम ऐसी गहराइयों में फंस जाते हैं मेरे प्रिय मित्रों, और ये There is भयानक no है। hope. वहां आशा नहीं है। There was a man called Job who was brought to such a realm of the dead. और एक व्यक्ति है अय्यूब, जो ऐसे आयामों से When होकर the गुजरा। devil decided to take away every good thing from Job. और शैतान ने जब ये निर्णय लिया कि हर एक भली वस्तु उसके जीवन से ले ले, His children, उसके बच्चे, his belongings, उसकी his संपत्ति, houses, उसके घर, everything he owned, और जो कुछ भी उसका था, even the health of his body. और उसके शरीर की सेहत भी। And he was sitting there with nothing. और वह उस स्थान में चला गया जहां उसके पास कुछ भी नहीं In था। one day, everything taken away. और एक दिन में उसने सब कुछ खो दिया। And Job was feeling the darkness of this realm. और अय्यूब इस आयाम के अंधकार को महसूस कर पा रहा His wife cursed him not being able to bear this, और उसकी पत्नी उससे कोस रही थी। saying, "Curse your God. वो कहती थी कि अपने परमेश्वर को कोस, Look at how your life has turned out." और देखो तुम्हारा जीवन कैसा हो गया है। She couldn't bear it. वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। He experienced the depths of this darkness. और अय्यूब ने अंधकार के उस आयाम को महसूस किया। Jesus himself went through this. और यीशु मसीह स्वयं इस आयाम से होकर गुजरे। He would have felt this darkness as he was facing the path of the cross in the Garden of Gethsemane. और गतसमनी के बाग में अंधकार के इस आयाम को महसूस किया होगा। He went through that agony that we would suffer, my friends. और वो उस पीड़ा से होकर गुजरा प्रिय मित्रों, जिस दर्द से हमें गुजरना था। Even as he went to give his body to be pierced and torn apart on the cross. यहाँ तक कि उसने अपने शरीर को दे दिया कि उसे भेदा जाए। The Bible says there was darkness around him. बाइबल बताती है कि वहां अंधकार छाया रहा। No light, कोई रोशनी नहीं, no hope, कोई आशा नहीं, no good word. कोई भी भली बात नहीं। There was only doom and gloom. केवल वहां विनाश और निराशा थी। Not only the realm of the dead, but he went through death itself. न सिर्फ मृत्यु के आयाम से, लेकिन वो मृत्यु से होकर गुजरा, That we may be saved. ताकि हम बचाए जा सके। And और in the grave, और कब्र में it didn't end there. वो वहां खत्म नहीं हुआ। He says in Revelations 1:18, और प्रकाशित वाक्य 1:18 में वह कहता है, I was dead, मैं मर चुका था, but I am alive forever. लेकिन देख मैं युगान युग के लिए जीवित हूं। And the gates of hell and the gates of death are the key is with me. और अधोलोक की कुंजी आज मेरे पास है। I hold the key to death and I hold the keys to hell. और मेरे पास कुंजी है मृत्यु की, और मेरे पास कुंजी है You अधोलोक need की। not be defeated by death. और आपको मृत्यु से पराजित होने की You जरूरत need नहीं not है। suffer in the midst of this darkness. और आपको इस अंधकार से पीड़ित होने की You जरूरत need नहीं not है। feel despair. और आपको निराश होने की जरूरत I नहीं है। have defeated and finished its dark works. और मैंने अंधकार के कार्यों को नाश किया है और जय प्राप्त As किया है। you, my child, hold on to me, और जैसे मेरे प्रिय बच्चों तुम मुझसे लिपटे रहते हो, you will feel only my peace, और तुम मेरी शांति को महसूस which कर I पाओगे। won as I went through this death. और जो मैंने जीता है जब मैं इन सभी बातों से होकर गुजरा। That's the great gift today that we receive, my friend. और ये एक उत्तम उपहार है जो आज हमें मिलता है। As we thank Him for what He went through and cling on to Jesus. जैसे हम उसे धन्यवाद देते हैं कि वो किन बातों से होकर गुजरा और उससे लिपटे रहते हैं। The peace that Jesus won for us वो शांति जो यीशु ने हमारे लिए प्राप्त की is है, coming upon us.
वह आपके ऊपर आ रही है। That peace was acquired by Job और वही शांति अय्यूब ने प्राप्त की as the Lord strengthened him and filled him. और जैसे परमेश्वर ने उसे अपने बल को दिया, He was still able to say that I will only praise God. और वह ये बोलने पाया कि मैं सिर्फ अपने परमेश्वर की ही महिमा करूंगा। It is a supernatural strength from God, my friends. और ये अद्भुत बल है जो हम परमेश्वर से पाते हैं। So today, even in your sinking, और यहाँ तक कि आज आपके डूबने में भी there's going to be a supernatural faith and a strength rising up out of the peace God gives. प्रभु जो शांति देते हैं उससे एक अलौकिक विश्वास और शक्ति उत्पन्न होने वाली For है, you not to curse God, ताकि आप परमेश्वर को कोसे नहीं, but instead praise Him for His great. बल्कि विपरीत परमेश्वर को महिमा दे। Praise Him for what He won on the cross. उसने जो क्रूस पर जय प्राप्त करी है, Praise Him for He is alive and alive in us. उसे महिमा दे कि वो आज जीवित है और जीवित है। The living Savior is coming into us और वो जीवित उद्धार करता हमारे अंदर and आ रहा है healing our heart, और हमारे हृदय को चंगाई कर रहा है, raising us from the pit, हमें उस गड्ढे से ऊपर निकाल रहा है raising us from the realm of the dead. और उस अधोलोक की गहराई से हमें ऊपर खींच रहा है। And He says, because I live, और वो कहता है क्योंकि मैं जीवित हूँ, you, my child, will live also. तुम मेरे बच्चों तुम भी जियोगे। Rise up, ऊपर उठो, rise up, ऊपर उठो and be filled by my joy. और मेरे आनंद से भर He जाओ। raised up Job उसने अय्यूब को उठाया and He blessed him twice. और उसे 2 गुने आशीष को दिया। God blessed and returned everything to Job in double measure. परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दिया और 2 गुने भाग में वापस Whatever you've किया। lost, my friend, आपने जो कुछ भी खोया है मेरे प्रिय मित्रों, you will receive in double measure आप 2 गुने भाग में उसे पाने पाएंगे, because you have chosen to cling on to Jesus. क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि मसीह से लिपटे रहेंगे। You've chosen to honor Him निर्णय लिया है कि उसे आदर in दें the midst of the realm of the dead. और इन सभी परिस्थितियों के बीच में भी That is power. वही सामर्थ्य है That is your power that God has given you. और यही आपकी सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने दिया है। Thank Him for this grace. और परमेश्वर को धन्यवाद दें Thank Him for this strength. और इस बल के लिए धन्यवाद दें, Thank Him for this faith. इस विश्वास के लिए धन्यवाद दें। Others cannot rise and handle such challenges. और दूसरे इस तरह से नहीं उठ पाते और इसका They सामना break नहीं and कर fall. पाते। That is man. वह टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं और यही But मनुष्य thank है। God that He is our rock. लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वह हमारा He चट्टान is है, our strength. वह हमारा And He's बल making है us rise up. और वह हमें उठा रहा है, Because you've gone through this realm, my friend. क्योंकि आप इन आयाम से होकर गुजरे हैं मित्रों, And you know what it is. और आप जानते हैं कि यह कैसा है, And you also know the saving power of the Lord. और आप यह भी जानते हैं परमेश्वर के बचाए जाने की सामर्थ्य को। You will never fear this realm again. आप इस आयाम को फिर महसूस कभी नहीं करने पाएंगे। You will never fear death again. आप मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे। You have faced it and conquered over the power of death thanks to the power of the Lord. आपने सामना किया है और जय प्राप्त किया है मृत्यु की इस सामर्थ्य को। परमेश्वर का धन्यवाद That हो। is the power to those who have risen up from this realm of the dead. और यही उन लोगों का बल है जो इस तरह की परिस्थिति से उठ खड़े हुए हैं। And not only that, और यही सिर्फ नहीं, your heart won't stand still. आपका हृदय यहाँ रुकेगा नहीं, It will go out to those who are sinking. और वह उनके पास जाएगा जो डूब रहे हैं, It will make you cry for them और आपको उनके लिए रोने पर विवश करेगा, because you know exactly what they're going through. क्योंकि आपको मालूम है कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहे You will हैं, cry with compassion and lift them up also from the depths. और आप उनके लिए दया से रोएंगे और उन्हें उस परिस्थिति से ऊपर The निकालेंगे। Lord will make you with such strength परमेश्वर आपको ऐसे बल को देगा
making people rise up along with you. ताकि लोगों को आप अपने साथ उठाकर खड़ा करें। You will carry that joy to everyone. आपके अंदर ऐसा आनंद होगा सबके लिए, The joy of the Lord's salvation. परमेश्वर के उद्धार का आनंद। It's wonderful, my friend. और ये अद्भुत है प्रिय दोस्तों, This is a great strength that the Lord is giving us today. और ये अद्भुत बल है जो परमेश्वर आज आपको देने जा रहा है। An oil of joy is coming upon us. हर्ष का तेल आप पर आ रहा है। All the mourning stops right now. हर एक विलाप इस वक्त रुक जाओ। All our ashes is gone. हर एक राख दूर कर रहा He है crowns us with splendor, my friend. और वह हमें सुंदर पगड़ी बांध रहा है। Will you submit your heart to Him for this? क्या आज आप अपना हृदय उसको समर्पित करें? Jesus, I want you. यीशु, मैं तुझे चाहता हूँ, I thirst for you. तेरे लिए मैं प्यासा हूँ, I run towards you, मैं तेरी ओर दौड़ता हूँ, chasing after you like Elisha. एलीशा के समान तेरे पीछे भाग रहा हूँ। I want you, Lord. मुझे आप चाहिए I परमेश्वर, want you, Lord. मुझे आप Tell चाहिए। Him right now, my friend. उससे ऐसा कहें Show Him how दोस्तों, much you want Jesus. उसे बताएं कि इस वक्त में आप उसे कितना चाहते How हैं, much you want His presence. कितना अधिक आप उसकी उपस्थिति को How चाहते much you हैं, want to be filled with His anointing. और कितना अधिक आप इस अभिषेक से भरना चाहते Yes, हैं। chase after Him. हाँ, उसके पीछे भागिए, Cry unto Him. उसे पुकारिए, Submit your heart right now as He's knocking on the door. समर्पण करे जब आपके हृदय को खटखटा रहा He है। wants to enter and sit in this heart. आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता है। Jesus wants to come in. यीशु अंदर आना चाहते हैं। Open it and cry for Him. उससे पुकारे और दरवाजा खोले। Fill me, Lord. मुझे भर दे पिता, Fill me, मुझे Lord, भर दे परमेश्वर, with this इस anointing, अभिषेक से, with your oil of joy, आपके आनंद के तेल से, oil of gladness. आनंद के तेल से। Love me, मुझे Lord. प्रेम करें, Love me who has been hurt and beaten in this world. मुझसे प्रेम करें क्योंकि संसार में मुझे ठोकर और चोट लगी है। Love me who has lost everything. मैंने सब कुछ खो दिया है, मुझसे प्रेम करे। I have nothing, Lord, मेरे पास कुछ भी नहीं है, but all I need is you. लेकिन जो मुझे चाहिए वो आप हो। All I need is जो you. मुझे चाहिए वो आप हो। All I need is you. जो मुझे चाहिए वो आप हो। Make that proclamation, my friend. इस अंगीकार को करे दोस्तों, Make that proclamation from the depths of your heart. अपने हृदय की गहराई से इस अंगीकार को करे। All I need is you, Father. जो मुझे चाहिए वो सिर्फ आप हो। Open your heart and commit yourself and stand wherever you are right now looking to Jesus. अपने हृदय को खोलकर जिस स्थान पर भी आप एक समर्पण के साथ खड़े हो The जाएं। hand of the Lord is upon you. परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। You are favored by the Lord. परमेश्वर के द्वारा उपकार किए जा रहे हैं। Favored by the Lord. उसका अनुग्रह आप पर आ रहा है। Favored by the Lord. परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आ रहा Come, है। Lord, आइए परमेश्वर, and fill these hearts which seek after you. ये हृदय जो आपको ढूंढ रहे हैं उन्हें भर दीजिए। Come into our hearts, Lord. हमारे हृदय में आ जाइए परमेश्वर, We long for you. हम तेरी ओर देखते हैं। Great peace, एक अद्भुत शांति, great joy. एक अद्भुत आनंद। You have destroyed every evil on the cross. हर एक दुष्ट को आपने क्रूस पर नाश कर दिया है। You've destroyed every sin. आपने हर एक पाप को नाश कर दिया You've है। destroyed the powers of darkness. अंधकार की ताकत को आपने नाश कर दिया है। Now fill your children with your light. अपने बच्चों को अब अपनी रोशनी से भर दीजिए। Release them from their burdens. उनके बोझ से उन्हें आजाद करिए। Release them from all the oppression. उनके हर एक निराशाओं से आजाद करिए। Make our hearts free, right? उनके हृदय को आजाद कर दीजिए। Make our hearts light with your peace. हमारे हृदय को आपकी रोशनी और शांति से भर दीजिए। A tremendous peace is coming into you एक अद्भुत शांति आप पर आ रही है। as you've submitted all your worries and cares into the hands of Jesus. आपने अपनी चिंता फिक्र को जिस प्रकार उसके हवाले कर दिया He है, has taken over, my friend. उसने इन सभी बातों को ले लिया है दोस्तों। Joy is coming.
आनंद आ रहा है, Joy is coming. आनंद आ रहा है। Rejoice and be free. आनंद मनाएं और आजाद हो जाएं। Rejoice under the gladness of God. परमेश्वर के आनंद में आनंद मनाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank Him for He's filling you. धन्यवाद दें उसके इस भरे जाने के लिए आपको। Praise Him for He's chosen you. तारीफ करें आपके चुने जाने के लिए। Honor Him for He has favored you. उसका आदर करें क्योंकि उसने आप पर उपकार किए हैं। You His favorite children. आप उसके प्रिय संतान हैं। Honor Him and thank Him, my friend. उसका आदर करें और उसे धन्यवाद दें। For His presence is coming in. उसकी उपस्थिति आ रही है। Joy. आनंद, He's setting you free. वो आपको आजाद कर रहा है। Setting you free from all the shackles. हर एक बातों से आजाद कर रहा है To go and ride. ताकि आप जाएं और खड़े हों। No more obstacle. अब कोई समस्या नहीं, No more block. कोई अड़चन नहीं। Arise and shine. उठें और चमकें, Arise and shine. उठ जाएं और चमकें। Blessings are coming upon your studies. आपके पढ़ाई में आशीष आ रही है। Increase 100 times in your career. आपके करियर में 100% उन्नति आ रही है। A great name is coming to those who have seen great shame. और जिन्होंने लज्जा का सामना किया है, एक उत्तम नाम आपको मिल रहा है। All that the devil has stolen, God is restoring in a double हर measure. एक वो बातें जो शैतान ने चुरा लिया है, परमेश्वर उसे दोगुने भाग में लौटा रहा The है। God of justice is here. परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। Honor your children in a mighty way, Lord. परमेश्वर अपने संतानों का आदर करे पराक्रमी रूप में। Release your blessing upon them. अपनी आशीष को उन पर उंडेल दीजिए। Let them increase tremendously, O God. एक अद्भुत रूप में वो ऊपर उठने पाए, Tremendously. अद्भुत रूप में, To the highest level. एक बड़े ऊंचे स्थान पर। Honor them where they have seen shame, Lord. हर एक लज्जा के स्थान पर आदर दीजिए। Let every eye fear that Jesus is with them. और हर एक आंख डरे और देखे कि यीशु उनके साथ है। Those who have hurt them, let them be afraid and fall before you. और जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी है, चोट पहुंचाया, वो भयभीत हो। Raise up your children and place them on this royal mountain. उस शाही पहाड़ पर उन्हें उठाकर खड़ा करिए Let them परमेश्वर, stand firm. और उन्हें स्थिर करिए। Healing is coming upon your body. चंगाई आपके शरीर में आ रही है। The Lord cares for you and touches you right now. परमेश्वर आपकी फिक्र करता और आपको छू रहा है इस As He वक्त। went about healing and delivering and doing good among the people. और जैसे वो लोगों के बीच में गया, उनके लिए भलाई करता गया। Touch them, Lord. यीशु उन्हें छूइए, Touch them, Lord. उन्हें छू Set them लीजिए, free. उन्हें आजाद करिए, Heal them. उन्हें चंगा करिए, Release them, Lord. उन्हें आजाद करिए परमेश्वर। Cleanse them with the blood of Jesus. यीशु के लहू से उन्हें शुद्ध करिए। Let your saving power fill them. आपके उद्धार करने की ताकत उन्हें भर दे। And let the devil scream and leave them, और Lord. शैतान चिल्लाकर वापस भागे। Not being able to bear the light of Christ. परमेश्वर की रोशनी के सामने खड़ा ना रह पाए। Arise and shine, my friend. उठें और प्रकाशमान हो मेरे दोस्तों। In the blessing of God. परमेश्वर की आशीषों में, In the blessing of God. परमेश्वर की आशीषों में He's raising your name much higher. आपके नाम को अधिक ऊंचा उठा रहा है। Honor the young people here, Lord. यहाँ मौजूद हर एक जवानों का आदर करें। Fill them with your spirit. अपनी आत्मा से उन्हें भर दे। Fill them with your heavenly languages of joy. ओ आनंद के उस स्वर्गीय भाषा से उन्हें भर दे। Hold their hand and lead them, Holy Spirit. उनका हाथ पकड़कर उनकी अगुवाई करे पवित्र आत्मा। Raise them to have a great stature. एक अच्छे नाम के लिए उन्हें उठाकर खड़ा करिए। A daring heart. एक निडर हृदय, Full of zeal and passion to do mighty things for Jesus. यीशु के लिए शक्तिशाली कार्य करने के लिए उत्साह और Make them जुनून more से than conqueror. उन्हें जयवन से बढ़कर बनाइए। Make them more than conqueror. उन्हें जयवन से बढ़कर बनाइए। Thank you, Lord. धन्यवाद Make यीशु। them problem solvers, tackling every problem. उन्हें समस्याओं का समाधान करने वाले बनाइए। Such wisdom will come through. और ऐसी बुद्धि आप पर आएगी Kings will be amazed. और राजा आश्चर्यचकित You will होंगे। be the desire of the king.
आप राजाओं के अभिलाषा का कारण बनेंगे, favored by God and man. परमेश्वर और मनुष्य के द्वारा अनुग्रहित। Thank God for this blessing, my young friend. धन्यवाद दे परमेश्वर को इस आशीष के लिए। Rejoice as He blesses you. आनंदित हो जैसे वो आपको आशीषित करता है। Hallelujah. हालेलुया। We rejoice in your हम आपकी presence उपस्थिति में आनंद मनाते हैं, as we've been lifted up out of the pit हम जैसे इस गड्ढे से उठाए जाते हैं and placed on high upon the और rock. चट्टान पर ऊंचे खड़े किए जाते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen. Amen. God bless you, my friend.